کہانی کا آغاز ایک عام سے اپارٹمنٹ کے کمرے سے ہوتا ہے جہاں ایک نوجوان گہری نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے کی دیواروں کے باہر دنیا میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ پورا شہر خوف اور افراتفری کی لپیٹ میں ہوتا ہے، مگر وہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنی نیند میں مگن ہوتا ہے۔ اچانک اس کے موبائل کا الارم بج اٹھتا ہے۔ الارم کی آواز سن کر وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا ہے اور بستر سے اٹھ جاتا ہے۔ روزمرہ کی عادت کے مطابق وہ واش روم جاتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے اور خود کو تازہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھتا ہے، فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتا ہے اور چند گھونٹ پانی پیتا ہے۔ پانی پینے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر میز پر پڑتی ہے، اسے وہاں ایک خط رکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ حیرانی سے خط اٹھاتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، بیٹے ہم لوگ جلدی میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے آج اپنا کھانا خود بنا لینا۔ خط پڑھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا ہے اور اسے دوبارہ میز پر رکھ دیتا ہے۔ اسے ابھی تک ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آج کا دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد لڑکا آرام سے اپنے کمرے میں واپس آتا ہے اور حسب معمول ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ابھی تک باہر کی دنیا میں ہونے والی تباہی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ پوری توجہ سے گیم کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، پیچھے اسکرین پر دیکھو۔ لڑکا چونک جاتا ہے، وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور گھبراہٹ میں ٹی وی آن کر دیتا ہے۔ ٹی وی پر ایک ہنگامی خبر نشر ہو رہی ہوتی ہے۔ نیوز رپورٹر گھبرائی ہوئی آواز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ شہر میں ایک پراسرار وبا پھیل چکی ہے اور متاثرہ لوگ انتہائی خطرناک رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ خبر سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ فوراً ٹی وی بند کرتا ہے اور تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ نیچے سڑکوں پر خوفناک مناظر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ مدد کے لیے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ گاڑیاں بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اور پورا شہر افراتفری کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے۔ وہ عورت بے چینی سے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی بار بار اپنے بچے کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ اچانک اسے دور سے اپنا بچہ نظر آتا ہے، گا اٹھائے اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ عورت کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ وہ دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بچے کی حالت اچانک بدلنے لگتی ہے۔ اس کا رویہ غیر معمولی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں پر حملہ کر دیتا ہے۔ عورت چیخ اٹھتی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آس پاس بھاگتے ہوئے لوگ مزید خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے وہاں سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ کھڑکی کے پاس کھڑا لڑکا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ باہر کوئی عام حادثہ نہیں بلکہ ایک خوفناک تباہی پھیل چکی ہے۔ اینڈ ہی اسی دوران اچانک اس کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگتی ہے۔ لڑکا چونک جاتا ہے۔ وہ احتیاط سے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھتا ہے، مگر اسے باہر کوئی نظر نہیں آتا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ دروازہ کھولتا ہے، مگر جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ایک نوجوان لڑکا تیزی سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اپارٹمنٹ کا مالک فوراً غصے میں آ جاتا ہے، تم کون ہو اور میرے گھر میں ایسے کیسے گھس آئے؟ گھبرایا ہوا لڑکا فوراً جواب دیتا ہے، بھائی تمہیں نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، ہر طرف زومبیز پھیل چکے ہیں، وہ لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، میرا بھائی بھی ان کے حملے میں مارا گیا، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ مگر گھر کا مالک ابھی تک اس پر یقین نہیں کر پا رہا ہوتا۔ وہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں جانا ہوگا۔ نوجوان لڑکا بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر آہستہ سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، کم از کم مجھے واش روم استعمال کرنے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ لڑکا اجازت دے دیتا ہے اور وہ واش روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی دوران اپارٹمنٹ کا مالک دوبارہ ٹی وی آن کرتا ہے۔ نیوز چینل پر ہنگامی نشریات جاری ہوتی ہیں۔ رپورٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس پراسرار وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے جسم پر زخموں اور کاٹنے کے نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی عقل و شعور کھو بیٹھتے ہیں اور دوسروں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لڑکا چونک جاتا ہے۔ اچانک اسے یاد آتا ہے کہ واش روم میں جانے والے لڑکے کی گردن اور ہاتھ پر بھی عجیب زخم موجود تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے ایک بڑی چھری اٹھا لیتا ہے۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ لڑکا باہر آ جاتا ہے، بھائی مجھے لگتا ہے ہمیں مل کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے، مگر وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتا کہ اچانک اس کے جسم میں عجیب تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اس کی حرکات غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ لڑکا خوف سے چند قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد وہ مکمل طور پر زومبی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور فوراً حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ خوش قسمتی سے لڑکا پہلے ہی خبردار ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پوری
पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को धक्का देता है। ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ जा गिरता है, मगर वो अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। वो दरवाजे के दरमियान से अपना सर अंदर डालकर इसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। इसी लम्हे लड़का अपनी सारी हिम्मत जमा करता है और छरी से वार कर देता है। वार लगते ही ज़ॉम्बी पीछे की तरफ गिर जाता है। लड़का फौरन दरवाजा बंद करके इसे लॉक कर देता है। कुछ लम्हों तक वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा रहता है। इसकी सांसें तेज चल रही होती है। इसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो अभी अभी मौत के मंढे से वापस लौटा है। अभी अभी मौत का सामना करने के बाद लड़का पहले से कहीं ज्यादा खौफजदा हो चुका होता है। उसे हर लम्हा ये डर सता रहा होता है कि कहीं बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर ना आ जाए। इसीलिए वो फौरन किचन की तरफ भागता है और पूरा फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने लगा देता है, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करे तो उसे रोकने के लिए एक इजाफी रुकावट मौजूद हो। ये सब करने के बाद वो दोबारा टीवी ऑन करता है। तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही होती है। पूरा शहर तबाही की लपेट में आ चुका होता है। रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं कि एक प्रासराय वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसे एक खूनख्वार मखलूक में तब्दील कर देता है। मुतासिरा लोग अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो देते हैं और फिर हर जिंदा इंसान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये खबर सुनते ही लड़के के जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती है। इतने में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये उसके वालिदैन का मैसेज होता है। मैसेज में लिखा होता है, हम तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर हालात बहुत खराब है। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ मौजूद है। हम फिलहाल एक महफूज जगह पर है। तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। अपने वालिदैन का पैगाम पढ़कर लड़के की आंखों में नमी आ जाती है, मगर उसे ये जानकर कुछ सुकून भी मिलता है कि उसके माँ बाप अभी तक महफूज है। उसी दौरान न्यूज चैनल पर एक वीडियो चलाई जाती है। वीडियो में एक नौजवान मोबाइल के जरिए लाइव व्लॉग बना रहा होता है। वो लोगों को बता रहा होता है कि वो महफूज है और उसके साथ सब कुछ ठीक, मगर अचानक उसका पाँव फिसल जाता है। वो नीचे गिर पड़ता है। चंद ही लम्हों में अर्द गिर्द मौजूद ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ लपकते हैं। वीडियो अचानक खौफनाक चीखों से भर जाती है और फिर नशरियात बंद हो जाती है। ये मंजर देखकर लड़के के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन टीवी बंद कर देता है। अब उसे पहले से ज्यादा शिद्दत से एहसास होने लगता है कि ये आफत किसी एक इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुकी है। कुछ देर बाद वो अपना ड्रोन निकालता है। वो उसके साथ अपना मोबाइल जोड़ देता है ताकि कैमरे की मदद से शहर का जायजा ले सके। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, क्या मैं अकेला जिंदा हूँ या कहीं और भी कोई मौजूद है। ड्रोन आहिस्ता आहिस्ता अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और इमारतों के दरमियान परवाज करने लगता है। लड़का मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए हर तरफ देखता रहता है, मगर जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ तबाही दिखाई देती है। सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। गाड़ियाँ तबाह हालत में खड़ी होती हैं। इमारतें खामोश और सुनसान दिखाई देती है, मगर किसी जिंदा इंसान का कोई निशान नहीं मिलता। ये देखकर उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। इसी दौरान वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करता है। इस पोस्ट में वो सिर्फ चंद अल्फाज लिखता है, हमें जिंदा रहना होगा। पोस्ट करने के बाद वो थका हुआ अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। वो खुद को मसरूफ रखने के लिए दोबारा वीडियो गेम खेलने की कोशिश करता है, मगर अब उसका दिल किसी चीज में नहीं लग रहा होता। आखिरकार वो गेम बंद कर देता है और खामोशी से बिस्तर पर लेट जाता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई होती है, मगर उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या वाकई वो इस शहर का आखिरी जिंदा इंसान है। कुछ देर आराम करने के बाद लड़के की आंख लग जाती है, मगर अचानक उसे बाहर से कदमों की आवाजें सुनाई देती है। वो फौरन चौंक कर उठ बैठता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये भी किसी ज़ॉम्बी की आवाज होगी, लेकिन फिर उसके दिल में एक उम्मीद जागती है, क्या कहीं कोई और जिंदा इंसान भी मौजूद है। ये सोचते ही वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ता है और बाहर झांक कर देखता है। जो मंजर उसके सामने आता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। नीचे सड़क पर एक नौजवान लड़की ज़ॉम्बीज़ के एक बड़े ग्रोह में घिरी हुई होती है, मगर वो हिम्मत नहीं हार रही होती। वो अपनी गन के जरिए मुसलसल ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रही होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। एक के बाद एक ज़ॉम्बी गिरता जा रहा होता है। लड़का खिड़की से खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि कोई इतनी देर तक अकेला इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर सकता है, मगर फिर अचानक सूरत हाल बदल जाती है। लड़की की गन की गोलियां खत्म हो जाती है। वो जल्दी से दूसरा मैगजीन निकालने की कोशिश करती है, मगर उसे मौका नहीं मिलता। चंद ज़ॉम्बीज़ फौरन उस पर झपट पड़ते हैं। लड़की पूरी ताकत से उन्हें धकेलने की कोशिश करती है और मदद के लिए पुकारती है। ये मंजर देखकर लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने का फैसला करता है। वो खिड़की से बाहर निकलने का सोचता है, से जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज़ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सके, मगर नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ उसकी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। वो मुसलसल लड़की की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। लड़की की मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती है और आखिरकार
ज़ॉम्बीज़ उसे अपने दरमियान घसीट कर ले जाते हैं। खिड़की के पास खड़ा लड़का बेबसी से ये सब देखता रह जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता। चंद लम्हों बाद वो मायूसी के आलम में खिड़की से हट जाता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। उसका दरवाजा हिलने लगता है। जो फ्रिज उसने दरवाजे के आगे रखा हुआ होता है वो भी अपनी जगह से सरकने लगता है। कुछ ही लम्हों में दरवाजा टूट जाता है और एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आता है। लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जान बचाने के लिए पीछे हटने लगता है, मगर ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़का फौरन बैल्कोनी की तरफ भागता है। अगले ही लम्हे वो बैल्कोनी की रेलिंग के बाहर लटक जाता है। उसके हाथ मजबूती से ग्रिल को पकड़े हुए होते हैं। ज़ॉम्बी उसके पीछे बैल्कोनी तक पहुंच जाता है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि लड़का नीचे नहीं गिरा। ज़ॉम्बी सीधा आगे बढ़ता है, अपना तवाज़ुन खो बैठता है। अगले ही लम्हे वो नीचे जा गिरता है। लड़का सांस रोके ये मंजर देख रहा होता है। कुछ लम्हों बाद उसे यकीन आता है कि वो एक बार फिर मौत के मनहे से बच निकला है। अगरचे उसके हाथ कांप रहे होते हैं, मगर उसके दिल में शुक्रगुजारी भी होती है कि वो अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर चढ़ता है और अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस आ जाता है। अंदर आते ही वो फौरन दरवाजे को मजीद मजबूत बनाने में लग जाता है। वो कीले, लकड़ी के तख्ते और घर में मौजूद हर मजबूत चीज इस्तेमाल करता है ताकि दरवाजा अच्छी तरह बंद हो जाए। अब वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि इस दुनिया में एक छोटी सी गलती भी जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क पैदा कर सकती है। लड़का बड़ी मेहनत से अपने दरवाजे को दोबारा मजबूत बना रहा होता है। वो कीले लगा रहा होता है, लकड़ी के तख्ते जमा रहा होता है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि कोई ज़ॉम्बी दोबारा उसके अपार्टमेंट में दाखिल ना हो सके। मगर इसी दौरान उसकी नजर फर्श पर बिखरी हुई चीजों पर पड़ती है। वो चंद लम्हों के लिए साकित रह जाता है। दरवाजा टूटने और फ्रिज के सरकने की वजह से उसका ज्यादातर खाना जमीन पर गिर चुका होता है। कुछ चीजें टूट चुकी होती है जबकि बाकी खराब हो चुकी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को उठाकर देखता है, मगर अब इनमें से ज्यादातर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये मंजर देखकर उसके दिल में एक अजीब सी मायूसी भर जाती है। अब मसला सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का नहीं था, अब उसे भूख का भी सामना करना था। वो खामोशी से फर्श पर बैठ जाता है। उसकी नजरें खाली हो चुकी होती हैं। कुछ देर बाद वो अपना मोबाइल उठाता है और इंटरनेट पर लाइव आ जाता है। शायद उसे उम्मीद होती है कि कहीं कोई और जिंदा इंसान भी उसे सुन रहा हो। कैमरा ऑन होते ही वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू करता है। मेरे पापा ने मुझसे आखिरी बार सिर्फ एक बात कही थी। वो चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। तुम्हें जिंदा रहना होगा। उसकी आवाज में थकन और उदासी साफ महसूस हो रही होती है। वो दोबारा बोलता है, मैं 2 दिन से इस अपार्टमेंट में कैद हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदा रह सकूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदा रहूं। ये अल्फाज कहते हुए उसकी नजरें झुक जाती हैं। चंद लम्हों बाद वो लाइव बंद कर देता है। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा जाती है। वो आहिस्ता से मोबाइल एक तरफ रख देता है और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा चुकी होती है। पहली बार उसे शिद्दत से एहसास होता है कि शायद इस जंग में उसका सबसे बड़ा दुश्मन ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि तन्हाई और मायूसी है। वक्त तेजी से गुजर रहा। अब इस तबाही को शुरू हुए कई दिन बीत चुके होते हैं। लड़का मुसलसल अपने अपार्टमेंट में कैद रहकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही होती है। एक दिन वो खामोशी से टीवी के सामने बैठा खबरें देख रहा होता है। हर चैनल पर सिर्फ तबाही, खौफ और ज़ॉम्बी हमलों की खबरें चल रही होती है। अचानक खबरों के दरमियान एक इश्तिहार आ जाता है। इश्तिहार में एक शख्स मजे से गरम गरम नूडल्स खा रहा होता है। ये मंजर देखते ही लड़के को शिद्दत से भूख महसूस होने लगती है। वो फौरन उठकर किचन की तरफ जाता है और घर में बची हुई चीजें तलाश करने लगता है। काफी देर तलाश करने के बाद उसे नूडल्स का एक आखिरी पैकेट मिल जाता है। वो उसे ऐसे उठाता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। चंद ही लम्हों बाद वो जल्दी जल्दी उसे खा लेता है, मगर इसके बाद जब वो हाथ धोने के लिए नल खोलता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। नल में से एक कतरा भी पानी नहीं निकलता। वो बार बार नल घुमाता है, मगर पानी बंद हो चुका होता है। अब उसके पास ना मुनासिब खुराक बची होती है और ना पानी। वो खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही होती है। इसी दौरान टीवी पर एक बार फिर सरकारी ऐलान नशर होता है, तमाम शहरी घरों के अंदर रहे, बाहर निकलना इंतहाई खतरनाक है। ये अल्फाज सुनकर लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो बेबसी से टीवी की तरफ देखता है। घर के अंदर रहो, लेकिन कैसे? ना खाना है ना पानी है, आखिर में जिंदा कैसे रहो? मगर फिर वो खिड़की से बाहर नजर दौड़ाता है। नीचे सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ बेमकसद घूम रहे होते हैं। ये मंजर देखकर वो आहिस्ता से खुद से कहता है, उनकी तरह वहशी बनने से बेहतर है कि मैं इंसान रहते हुए आखिरी सांस लो। ये सोचकर वो दोबारा बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आने लगता है। वही आखिरी अल्फाज, तुम्हें जिंदा रहना होगा। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आती है।
اس کی ماں نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ اس کے والد ایک ایسی ایپلیکیشن پر کام کر رہے تھے جو عام موبائل نیٹ ورک یا انٹرنیٹ کے بغیر بھی قریبی لوگوں تک سگنل پہنچا سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں دوبارہ امید کی ایک کرن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ فوراً اپنا موبائل اٹھاتا ہے اور اس ایپ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ کافی دیر تک وہ مختلف سیٹنگز اور فیچرز آزماتا رہتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ شاید وہ کسی زندہ انسان سے رابطہ قائم کر سکے، شاید کہیں کوئی اور بھی ہو جو اس کی طرح زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہو، مگر کافی کوششوں کے باوجود اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے موبائل نیچے رکھ دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر مایوسی لوٹ آتی ہے، مگر اس بار اس کے دل کے کسی کونے میں امید کی ایک چھوٹی سی چنگاری ابھی بھی باقی ہوتی ہے۔ اب اس تباہی کو شروع ہوئے 15 دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ 15 دن تک تنہائی، دھوپ اور خوف کا سامنا کرتے کرتے لڑکے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوتا، کبھی دوسرے کونے میں۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنے موبائل پر ایک میوزک چلا دیتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خود کو اس خوفناک حقیقت سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ موسیقی کے ساتھ ہلکا سا ناچنے لگتا ہے، جیسے اپنے ذہن سے خوف اور تناؤ کو نکالنا چاہتا ہو، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ وہ اچانک آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ماں باپ واپس آ گئے ہوں، جیسے وہ دوبارہ اپنے گھر میں محفوظ ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، مگر جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ کمرہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ وہ اب بھی اکیلا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ اسی دوران اس کے موبائل پر ایک پرانا پیغام دوبارہ نظر آتا ہے، اندر ہی رہنا اور زندہ رہنا۔ یہ الفاظ پڑھ کر وہ مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر موبائل میں کوئی سگنل موجود نہیں ہوتا۔ مایوسی کے عالم میں وہ کھڑکی کے قریب جا کر موبائل اونچا کرتا ہے اور ایک وائس میسج ریکارڈ کرنے لگتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ شاید کسی طرح یہ پیغام اس کے والدین تک پہنچ جائے، مگر اچانک اسے ایک کمزور سا سگنل مل جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی ماں اور والد کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لڑکے کے چہرے پر فوراً خوشی آ جاتی ہے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ پس منظر میں شور اور چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے زومبیز نے انہیں بھی گھیر لیا ہو۔ لڑکا گھبرا کر بار بار انہیں پکارنے لگتا ہے، مگر اچانک رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کال ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ اس کے دل پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ غصے، خوف اور مایوسی میں وہ اپنا موبائل ایک طرف پھینک دیتا ہے اور اچانک ایک خطرناک فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ایک زومبی اس کے سامنے آ جاتا ہے، مگر اس بار لڑکا پہلے جیسا ڈرا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسی طرح خود کو بچا لیتا ہے۔ پھر وہ راہداری میں آگے بڑھتا ہے۔ کچھ فاصلے پر ایک اور زومبی ایک لاش کے قریب جھکا ہوا ہوتا ہے۔ لڑکا چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے، مگر اسی وقت پیچھے سے کئی اور زومبیز کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ فوراً پلٹ کر دیکھتا ہے، ایک بڑا گروہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ زومبیز اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ کسی طرح جان بچاتے ہوئے وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد زومبیز دروازے سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دھم 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 پورا دروازہ ہلنے لگتا ہے، مگر خوش قسمتی سے اس نے پہلے ہی دروازے کو مضبوط کر رکھا ہوتا ہے۔ لڑکا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ ایک بار پھر موت کے بہت قریب جا کر واپس آیا ہے۔ اب اس خوفناک تباہی کو شروع ہوئے 20 دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ 20 دن تک تنہائی، بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے کرتے لڑکا مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ بچا ہوتا ہے اور نہ پینے کے لیے پانی۔ کمرے کی خاموشی ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے مزید کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہمت ہارنے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب زندہ رہنا ممکن نہیں، مگر عین اسی وقت اچانک ایک تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ وہ حیران ہو کر سر اٹھاتا ہے۔ چند لمحوں پہلے جو آنکھیں مایوسی سے بھری ہوئی تھیں ان میں دوبارہ امید کی ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً کھڑکی کی طرف دوڑتا ہے اور پھر اسے وہ چیز نظر آتی ہے جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ سامنے والی عمارت کی ایک کھڑکی میں ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اسے سگنل دے رہی ہوتی ہے۔ لڑکا حیرت سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آخرکار اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس تباہ شدہ شہر میں ایک اور انسان بھی زندہ موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی دنوں بعد مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے اشاروں کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی کئی دنوں سے اکیلی زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ پھر وہ اشارہ کرتی ہے، میں تم سے رات 7 بجے دوبارہ رابطہ کروں گی۔ لڑکا فوراً سر ہلا کر ہاں میں جواب دیتا ہے۔ کئی دنوں بعد اسے پہلی بار لگتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر لڑکی کھڑکی سے ہٹ جاتی ہے، مگر اچانک اس کے اپارٹمنٹ کے اندر ایک زومبی داخل ہو جاتا ہے۔ لڑکا گھبرا کر سامنے والی
इमारत की तरफ देखता है, मगर लड़की बिल्कुल नहीं घबराती। वो फौरन अपना हथियार उठाती है और पूरी महारत के साथ ज़ॉम्बी का मुकाबला करती है। चंद ही लम्हों में खतरा टल जाता है। लड़का हैरान रह जाता है। अब उसे एहसास होता है कि सामने वाली इमारत में मौजूद ये लड़की सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि एक मजबूत और बहादुर लड़ाका भी है, और शायद यही वो शख्स है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला है। कई दिनों बाद पहली बार लड़के के चेहरे पर उम्मीद नजर आती है। वो सामने वाली इमारत में मौजूद लड़की को इशारों से बताता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लड़की चंद लम्हे सोचती है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो इशारों से उसे समझाती है कि दोनों इमारतों के दरमियान एक रस्सी बांधने की कोशिश करते हैं। लड़का फौरन अपना ड्रोन निकालता है। वो ड्रोन के साथ एक मजबूत रस्सी बांध देता है और उसे लड़की की तरफ उड़ा देता है। चंद लम्हों बाद लड़की कामयाबी से रस्सी पकड़ लेती है। उसके बाद ड्रोन वापस आ जाता है। अब रस्सी का एक सरा लड़के की बालकोनी से और दूसरा सरा लड़की की बालकोनी से बंधा होता है। लड़की एक छोटी सी टोकरी में कुछ खाने पीने की चीजें रखती है और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के जरिए उसे लड़के की तरफ भेज देती है। जब टोकरी लड़के तक पहुंचती है तो उसकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। कई दिनों बाद उसे खाने के लिए कुछ मिला होता है। वो दूर से हाथ हिलाकर लड़की का शुक्रिया अदा करता है, फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। मगर इसी दौरान लड़की उसे वॉइस मैसेज भेजती है, इतनी जल्दी मत खाओ, आहिस्ता आहिस्ता खाओ, हमें नहीं मालूम कि अभी कितने दिन मजीद यहाँ जिंदा रहना पड़ेगा। लड़का उसकी बात सुनकर सर हिला देता है, मगर उसी वक्त एक नई मुश्किल पैदा हो जाती है। नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ की नजर दोनों इमारतों के दरमियान बंधी रस्सी पर पड़ जाती है। चंद ज़ॉम्बीज़ इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। लड़का ये मंजर देखकर घबरा जाता है। वो फौरन लड़की को इशारा करता है, ज़ॉम्बी तुम्हारी तरफ आ रहा है। लड़की फौरन पीछे हटती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही ज़ॉम्बी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है, एक भारी मेज जिसके साथ रस्सी बंधी होती है अपनी जगह से सरक जाती है। मेज लड़की से टकरा जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। लड़का बेबसी से सामने का मंजर देख रहा होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता रहे कि किसी तरह ज़ॉम्बी की तवज्जो लड़की से हट जाए। वो अपना ड्रोन दोबारा उड़ाता है। ड्रोन ज़ॉम्बी के इर्द गिर्द मंडलाने लगता है और आवाजें पैदा करता है ताकि इसका ध्यान दूसरी तरफ हो जाए। साथ ही लड़का चीख कर भी इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। अगले ही लम्हे वो उसे तोड़ देता है। ये देखकर लड़के की आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। अब ज़ॉम्बी तेजी से लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर ऐन वक्त पर लड़की को होश आ जाता है। वो फौरन अपना कुल्हाड़ा उठाती है और पूरी ताकत से वार करती है। ज़ॉम्बी अपना तवाज़ुन खो देता है और नीचे जा गिरता है। ये मंजर देखकर लड़का सुकून का सांस लेता है। उसे खुशी होती है कि लड़की महफूज है, मगर जब वो अपने पास मौजूद थोड़े से खाने को देखता है तो उसके जहन में एक और फिक्र आ जाती है, आखिर ये चंद चीजें हमें कितने दिन जिंदा रख सकेंगी। इसी लम्हे उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आते हैं, तुम्हें जिंदा रहना होगा। वो उन्हीं अल्फाज से खुद को हौसला देता है, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि इसी दौरान उसके अपार्टमेंट के बाहर ज़ॉम्बीज़ जमा होना शुरू हो जाते हैं। चंद ही लम्हों बाद वो दरवाजे पर जोर जोर से हमले करने लगते हैं। धम 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 पूरा दरवाजा लरजने लगता है और लड़का जान जाता है कि एक और खतरनाक आजमाइश उसका इंतजार कर रही है। रात गहरी हो चुकी होती है। लड़का अपने अपार्टमेंट में बैठा सोच रहा होता है। उसके सामने चंद ही खाने की चीजें बची होती हैं। वो जानता था कि अगर इसने जल्द कोई इंतजाम ना किया तो भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। आखिरकार वो एक खतरनाक फैसला करता है, मुझे बाहर निकलना होगा। वो एहतियात से दरवाजा खोलता है और आहिस्ता आहिस्ता राहदारी में कदम रखता है। फ्लोर गैर मामूली तौर पर खामोश होता है। जमीन पर कई ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती हैं जो पहले की लड़ाइयों में हलाक हो चुके होते हैं। लड़का डरते डरते आगे बढ़ता है। इसी दौरान उसे एक चाबियों का गुच्छा नजर आता है। वो फौरन उसे उठा लेता है। अब वो एक एक करके मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स के दरवाजे खोलने लगता है। पहले अपार्टमेंट में दाखिल होकर वो सीधा किचन की तरफ जाता है। खुशकिस्मती से फ्रिज में अभी भी कुछ खाने पीने की चीजें मौजूद होती हैं। वो जल्दी जल्दी उन्हें अपने बैग में भर लेता है। इसके बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ भी खामोशी छाई हुई होती है। वो जरूरी सामान इकट्ठा करता है और आगे बढ़ जाता है। हर नए अपार्टमेंट के साथ उसकी उम्मीद बढ़ने लगती है। शायद वो चंद और दिन जिंदा रह सकता था, मगर फिर अचानक एक अजीब मंजर उसके सामने आ जाता है। कमरे के दरमियान एक लाश सफेद चादर से ढकी हुई पड़ी होती है। लड़का चंद लम्हों तक उसे घूरता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चादर उठाता है। ये मंजर देखकर वो साकित रह जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से जोरदार आवाज आती है। वो फौरन पलटता है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लड़का घबरा जाता है। उसके हाथ से कुछ सामान भी गिर जाता है, मगर वो वक्त जाया नहीं करता। वो फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। राजदारी में गूंजती हुई आवाजें सुनकर मजीद ज़ॉम्बीज़ भी मुतवज्जा होने लगते हैं। अब सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। लड़का पूरी ताकत से भागता है। उसकी सांसें फूल चुकी होती है, मगर वो रुकने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। आखिरकार वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वो
अंदर घुसकर फौरन दरवाजा बंद कर देता है। अगले ही लम्हे बाहर से धराम 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 की आवाजें आने लगती हैं। ज़ॉम्बी दरवाजे पर हमले कर रहे होते हैं, मगर खुशकिस्मती से दरवाजा मजबूती से बंद होता है। लड़का जमीन पर बैठ जाता है, उसकी सांसें तेजी से चल रही होती है। इस बार इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ही होती है, क्योंकि वो न सिर्फ जिंदा वापस आ गया था बल्कि कई दिनों का खाना भी अपने साथ ले आया था। लड़का जब मुख्तलिफ अपार्टमेंट से सामान इकट्ठा करके वापस आता है तो उसे सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं मिलती बल्कि उसे 2 राब्ता करने वाली डिवाइसेस भी मिल जाती हैं। ये देखकर उसके जहन में फौरन एक ख्याल आता है। वो उसी रस्सी का इस्तेमाल करता है जो पहले दोनों इमारतों के दरमियान बंधी हुई थी। वो एक बैग में नूडल्स, कुछ जरूरी खाने की चीजें और एक डिवाइस रखता है, फिर एहतियात से उसे रस्सी के जरिए लड़की की तरफ भेज देता है। चंद लम्हों बाद लड़की बैग वसूल कर लेती है। बैग खोलते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वो फौरन डिवाइस ऑन करती है। अब पहली बार दोनों सिर्फ इशारों से नहीं बल्कि बराह रास्त बात कर सकते थे। हेलो, सुन रही हो? लड़के की आवाज सुनते ही लड़की मुस्कुरा देती है। हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। कई दिनों बाद दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो दोबारा आम जिंदगी के करीब आ गए हो। लड़का उसे बताता है कि वो नूडल्स बनाने लगा है। लड़की हंसते हुए जवाब देती है, तो फिर मैं भी आज नूडल्स ही बनाऊंगी। इसके बाद दोनों डिवाइस के जरिए बातें करते हुए अपना अपना खाना तैयार करने लगते हैं। कई दिनों बाद पहली बार दोनों सुकून से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान लड़का आहिस्ता से कहता है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। लड़की चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। तुम खुद जिंदा रहना चाहते थे, इसीलिए आज तक जिंदा हो। ये सुनकर लड़का खामोश हो जाता है। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि वो वाकई हार मानने के बावजूद अंदर से जीना चाहता था। लड़की भी उसका शुक्रिया अदा करती है, और तुम्हारा भी शुक्रिया, ये खाना मेरे लिए बहुत अहम था। दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहते हैं, मगर अचानक लड़का खिड़की की तरफ देखता है। उसे बाहर कुछ अजीब सा नजर आता है। वो फौरन कहता है, लगता है बारिश होने वाली है, पानी जमा कर लो। लड़की भी खिड़की के करीब जाती है, मगर चंद लम्हों बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये बारिश नहीं है, वो घबराई हुई आवाज में कहती है। लड़का फौरन बाहर देखता है और फिर दोनों को हकीकत समझ आ जाती है। नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ बड़ी तादाद में इमारत के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चीज ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली हो। अचानक लड़की के अपार्टमेंट के करीब कोई आवाज गूंजती है। ज़ॉम्बीज़ फौरन उसी सिमत दौड़ने लगते हैं। अब वो तेजी से लड़की के फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो मेरे बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लड़की घबराते हुए कहती है। लड़का फौरन सोचने लगता है, फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझती है। वो लड़की से उसके अपार्टमेंट का नंबर पूछता है। जैसे ही लड़की नंबर बताती है, लड़का उसी फ्लोर के एक दूसरे खाली अपार्टमेंट में कॉल मिला देता है। चंद लम्हों बाद वहाँ फोन बजने लगता है। रिंग टोन की आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज़ का रुख बदल जाता है। वो सब आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लड़की सुकून का सांस लेती है, उसकी जान बच चुकी होती है। मगर उस वाक़े के बाद दोनों को एक हकीकत समझ आ जाती है, वो हमेशा इस तरह छुपकर जिंदा नहीं रह सकते। लड़का आहिस्ता से कहता है, अब हमें फैसला करना होगा। लड़की खामोशी से इसकी बात सुनती है, या तो हम यहाँ कैद रहेंगे या फिर जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता तलाश करेंगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद लड़की जवाब देती है, तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद दोनों अपना जरूरी सामान जमा करना शुरू कर देते हैं। बैग्स तैयार किए जाते हैं, खाने पीने की चीजें अलग रखी जाती है, जो कुछ भी उनके काम आ सकता था वो साथ रखने लगते हैं। आखिर में लड़की डिवाइस पर आहिस्ता से कहती है, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। ये सुनकर लड़का खिड़की की तरफ देखता है। अब दोनों जानते थे कि अगला कदम उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम होने वाला है। अब दोनों अपना फैसला कर चुके होते हैं। वो जानते थे कि अगर वो हमेशा अपार्टमेंट्स में बंद रहे तो एक दिन खुराक खत्म हो जाएगी, और अगर बाहर निकलेंगे तो ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ेगा। मगर अब उनके पास खतरा मोल लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़की अपनी तरफ से एक मजबूत रस्सी तैयार करती है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे से राब्ता करते हैं और फिर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देते हैं। दिल तेजी से धड़क रहे होते हैं। नीचे सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ के गोल घूम रहे होते हैं। जैसे ही लड़की रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू करती है, चंद ज़ॉम्बीज़ की नजर उस पर पड़ जाती है। अगले ही लम्हे वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लड़की फौरन जमीन पर पहुंचती है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर देती है। रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए वो आगे बढ़ रही होती है, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे जमा होते जा रहे होते हैं। ऊपर खड़ा लड़का बेबसी से ये सब देख रहा होता है। अचानक एक जगह लड़की घिर जाती है। चंद ज़ॉम्बीज़ उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। ये देखते ही लड़का मजीद इंतजार नहीं करता। वो फौरन नीचे उतरता है और पूरी रफ्तार से लड़की की तरफ भागता है। किसी तरह वो उसे वहाँ से निकालता है और दोनों एक साथ दौड़ने लगते हैं। मगर अब उनके पीछे सिर्फ चंद नहीं बल्कि दर्जनों ज़ॉम्बीज़ लग चुके होते हैं। सड़कों में गूंजती हुई आवाजें, दौड़ते कदम और पीछे आते ज़ॉम्बीज़, सब कुछ एक खौफनाक ताक़ुब में बदल चुका होता है। दोनों पूरी ताकत से भागते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक इमारत का दाखिली
داخلی दरवाजा नजर आता है। वो फौरन अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर घुसते ही वो शीशे का दरवाजा बंद कर देते हैं। चंद ही सेकंड बाद ज़ॉम्बीज़ भी वहां पहुंच जाते हैं। धम 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 वो पूरी ताकत से शीशे के दरवाजे पर हमले करने लगते हैं। दोनों घबराए हुए पीछे हटते हैं, मगर खुशकिस्मती से इमारत के अंदर एक और मजबूत लोहे का दरवाजा मौजूद होता है। वो फौरन उसकी तरफ भागते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे बंद कर देते हैं। अब उनके और ज़ॉम्बीज़ के दरमियान दो रुकावटें मौजूद होते हैं। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश खड़े रहते हैं। उनकी सांसें तेजी से चल रही होती हैं। फिर लड़का दीवार के साथ टेक लगाकर कहता है, शुक्र है हम बच गए। लड़की भी गहरा सांस लेती है, मगर दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक छोटी सी कामयाबी थी, क्योंकि इस खौफनाक शहर से जिंदा निकलने की असल जंग अभी बाकी थी। दोनों किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। दिल की धड़कनें अब भी तेज चल रही होती हैं, मगर कम से कम वो कुछ देर के लिए ज़ॉम्बीज़ से बच निकले होते हैं। लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू करती है। चंद लम्हों बाद वो 8वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दोनों एहतियात से बाहर निकलते हैं। पूरा फ्लोर खामोश होता है। वो एक एक तरफ मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स के दरवाजे चेक करने लगते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कोई खाली अपार्टमेंट मिल जाए जहां वो कुछ देर आराम कर सकें और अगला मंसूबा बना सके, मगर एक के बाद एक दरवाजा बंद मिलता है। ना कोई जवाब देता है और ना कोई दरवाजा खुलता है। इसी दौरान अचानक राहदारी के दूसरे सरे पर एक ज़ॉम्बी नजर आता है। दोनों फौरन चौंक जाते हैं, मगर खतरा सिर्फ एक ज़ॉम्बी तक महदूद नहीं होता। चंद ही लम्हों बाद उसके पीछे से कई और ज़ॉम्बीज़ निकल आते हैं। अब पूरा रास्ता खतरे से भर चुका होता है। लड़की जल्दी जल्दी मुख्तलिफ दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, जबकि लड़का आपस में खड़ा हो जाता है कि कुछ देर रोका जा सके। ज़ॉम्बीज़ तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों एक एक करके अपने अपार्टमेंट्स के दरवाजे चेक करने लगते हैं। लड़का पूरी हिम्मत के साथ इनका सामना करता है और इन्हें अपने करीब आने से रोकने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बीज़ की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही होती है। लड़की एक दरवाजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा दरवाजा आजमाने लगती है, मगर सब बंद होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके पास वक्त खत्म हो रहा हो। फिर अचानक एक दरवाजा खुल जाता है, मगर अंदर दाखिल होने से पहले ही दरवाजे के पीछे से एक शख्स नमूदार होता है। दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि कई दिनों बाद वो किसी तीसरे जिंदा इंसान को देख रहे होते हैं। वो शख्स फौरन सूरत हाल को समझ जाता है। वो एक स्प्रे नमा आला निकालता है और ज़ॉम्बीज़ की तरफ इस्तेमाल करता है। चंद लम्हों के लिए ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आने लगती है। ये मौका गनीमत जानकर वो शख्स फौरन लड़के और लड़की को अंदर खींच लेता है। दरवाजा बंद होते ही तीनों सुकून का सांस लेते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ दरवाजे से टकराना शुरू कर देते हैं, मगर दरवाजा मजबूत होता है। वो शख्स दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। शुक्र है, वो गहरा सांस लेते हुए कहता है, मैं तो समझा था कि बाहर कोई ज़ॉम्बी होगा, लेकिन तुम लोग तो जिंदा इंसान हो। लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कई दिनों बाद पहली बार उन्हें महसूस होता है कि अब वो अकेले नहीं रहे, मगर उन्हें अभी ये नहीं मालूम होता कि ये पुरअसरार शख्स कौन है और उसके पास ज़ॉम्बीज़ से बचने के इतने तरीके आखिर आए कहां से है। वो पुरअसरार शख्स दोनों को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आता है। अगरचे उसने उनकी जान बचाई होती है, लेकिन लड़की को शुरू से ही उस आदमी पर कुछ शक सा होने लगता है। कमरे में दाखिल होते ही वो उन्हें पानी पेश करता है। लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शायद दोनों के दिल में एक ही सवाल होता है, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? ये देखकर वो आदमी खुद पहले पानी का एक घूंट पीता है, तब जाकर लड़का और लड़की भी पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद वो आदमी अचानक एक खबर सुनाता है, वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं? लड़का और लड़की उसकी तरफ देखते हैं। वो कहता है, साइंसदानों को ज़ॉम्बी वायरस रोकने का तरीका मिल गया है। ये सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। क्या सच? लड़का हैरत से पूछता है। वो आदमी सर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, कल न्यूज पर यही खबर चल रही थी। लड़का फौरन कहता है, मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मेरे अपार्टमेंट में कभी कभार सिग्नल आ जाते हैं, इसीलिए मैं खबरें देख लेता हूँ। फिर वो मजीद कहता है, न्यूज वालों का कहना था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद दिनों में ये वबा काबू में आ सकती है। ये सुनकर कई दिनों बाद लड़के और लड़की के चेहरों पर उम्मीद नजर आती है। शायद वाकई इनके बचने का कोई रास्ता मौजूद था। इसी दौरान लड़की की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वो आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। लड़की तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछती है, क्या यहाँ आपके साथ कोई बच्चा भी रहता है? ये सवाल सुनते ही आदमी के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, अब यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। ये जवाब सुनकर लड़की का शक मजीद बढ़ जाता है। कमरे में एक अजीब खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद लड़के को चक्कर आने लगते हैं। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ धुंधला होने लगता है। लड़की उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर उसे भी कमजोरी महसूस होने लगती है। चंद लम्हों बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। सामने वही आदमी खड़ा होता है और कमरे के एक कोने में एक औरत बैठी होती है जिसे मजबूती से बांधा गया होता है।
है। लड़की घबरा कर पूछती है, ये सब क्या है? आदमी आहिस्ता आहिस्ता उस औरत के करीब जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी होती है। फिर वो लड़की की तरफ देख कर कहता है, मुझे माफ कर देना। लड़की हैरत से उसे देखती रहती है। वो शख्स भारी आवाज में कहता है, मेरी बीवी बहुत दिनों से भूखी है। उसकी आवाज कांपने लगती है। अगर वो इसी तरह भूखी रही तो वो मर जाएगी। लड़की को अब अंदाजा हो जाता है कि उस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। वो फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर आदमी अपनी बीवी के करीब जाकर उसकी बंधी हुई रस्सियों को ढीला करना शुरू कर देता है। मैं जानता हूँ ये गलत है, वो आहिस्ता से कहता है, लेकिन मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। इसी दौरान दूसरे कमरे में लड़के को भी होश आने लगता है। वो कमजोरी के आलम में दरवाजा पेटना शुरू कर देता है। लड़की को छोड़ दो, वो पूरी ताकत से चीखता है, मगर आदमी उसकी बात सुने बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो रुक कर कहता है, तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए इतनी दूर तक लड़ते रहे हो। फिर वो अफसुर्दगी से अपनी बीवी की तरफ देखता है, और मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब लड़की कमरे में अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ लड़का बेबसी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कमरे के अंदर हर गुजरते लम्हे के साथ खतरा बढ़ता जा रहा होता है। लड़का और वो आदमी कमरे के बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर गुजर जाती है। अचानक अंदर से आने वाली तमाम आवाजें बंद हो जाती हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। ये खामोशी देखकर वो आदमी खुश होने लगता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, मेरी बीवी ठीक हो गई होगी। फिर वो दरवाजा खोल देता है, मगर दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल जाता है। उसकी बीवी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता और पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी आंखों में हैरत छा जाती है। क्या हो गया तुम्हें? वो परेशानी से कहता है, मगर उसकी बीवी उसे पहचान नहीं रही होती। वो फिर उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं हूँ तुम्हारा शौहर। उसकी आवाज भराने लगती है, मुझे देखो, क्या हो गया तुम्हें? मगर उसकी बीवी कोई जवाब नहीं देती। वो अब भी पहले की तरह बेकाबू होती है। ये मंजर देखकर लड़का और लड़की दोनों साकित रह जाते हैं। वो आदमी अपनी बीवी को देखते हुए आहिस्ता से कहता है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कमरे में एक लम्हे के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है। लड़की को भी एहसास हो जाता है कि ये शख्स गलत जरूर था, लेकिन अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। मगर अब हकीकत उसके सामने थी। वो औरत अब पहले वाली औरत नहीं रही थी। उसी दौरान अचानक एक जोरदार आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंजती है। लड़का चौंक कर खिड़की की तरफ देखता है। नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ मुतवज्जे होने लगते हैं और अब इमारत के इर्द गिर्द खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई होती है। लड़की आहिस्ता से अपनी गन निकालती है और लड़के की तरफ बढ़ा देती है। लड़का हैरानी से उसकी तरफ देखता है। लड़की धीमी आवाज में कहती है, अगर मेरे साथ कुछ हो गया और मैं पहले जैसी ना रही तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ये सुनते ही लड़के की आंखें नम हो जाती हैं। वो गन अपने हाथ में तो ले लेता है, मगर उसकी नजरें लड़की के चेहरे से नहीं हटती। कई दिनों की जद्दोजहद, खौफ और तन्हाई के बाद वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके होते हैं। लड़का गन की तरफ देखता है, फिर लड़की की तरफ, मगर वो जानता था कि वो उसे खोना नहीं चाहता। उसके हाथ कांपने लगते हैं। लड़की की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जैसे अल्फाज की अब जरूरत ही ना रही हो। अचानक दूर आसमान से एक आवाज सुनाई देती है, थक थक थक। दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ देखते हैं। आवाज मसल करीब आ रही होती है। आवाज मसलसल करीब आ रही होती है। फिर अचानक बादलों के दरमियान एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर! लड़का खुशी से चीख उठता है। लड़की फौरन खिड़की के करीब आ जाती है। दोनों की आंखों में उम्मीद वापस लौट आती है। शायद रेस्क्यू टीम है। लड़का बेयकीनी से कहता है। लड़की भी खुशी से मुस्कुरा देती है, शायद हम वाकई बच जाएं। मगर अगले ही लम्हे उसे एक बात याद आती है, अगर हमें इनकी तवज्जो हासिल करनी है तो हमें छत पर जाना होगा। लड़का फौरन सर हिला देता है। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर देते हैं। वही स्प्रे नमा गैस भी साथ ले लेते हैं जो इस पुरस्कार शख्स ने पहले इस्तेमाल की थी। दरवाजा खोलने से पहले दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये जानते हुए कि बाहर फिर वही खतरनाक दुनिया इनका इंतजार कर रही है। दरवाजा खुलता है। वो राहदारी में कदम रखते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ अभी भी आसपास मौजूद होते हैं। लड़का फौरन गैस इस्तेमाल करता है। चंद लम्हों के लिए रास्ता साफ हो जाता है और दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक ज़ॉम्बी नमूदार हो जाता है। वो अचानक उनके रास्ते में आ जाता है। लड़की घबरा जाती है, मगर लड़का फौरन उसके सामने आ खड़ा होता है। वो पूरी हिम्मत के साथ लड़की को पीछे रहने का इशारा करता है। छत तक पहुंचना जरूरी है, वो कहता है। अब उनके सामने सिर्फ एक मकसद होता है, किसी न किसी तरह छत तक पहुंचना, चख्तर और हेलीकॉप्टर को बताना कि वो अब भी जिंदा है। दोनों पूरी रफ्तार से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं रहती। चंद ही लम्हों में आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। अचानक कई ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को बचाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा होता है। लड़की अपने पास मौजूद हथियार की मदद से रास्ता साफ करने की कोशिश करती है, जबकि लड़का पीछे रहकर उसे
आगे बढ़ने का मौका देता है। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, किसी न किसी तरह छत तक पहुंचना। बिल आखिर लड़की सबसे पहले छत पर पहुंच जाती है। वो फौरन चारों तरफ नजरें दौड़ाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद हेलीकॉप्टर अब भी आसपास मौजूद हो, मगर आसमान बिल्कुल खामोश होता है। ना कोई हेलीकॉप्टर नजर आता है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम। ये देखकर उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। इधर लड़का अभी भी नीचे ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रहा होता है। वो पूरी हिम्मत से उनसे बचते हुए ऊपर आने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा होती है। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक सकता। चुनांचा वो फौरन छत की तरफ दौड़ लगाता है। दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे होते हैं। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ आखिरकार छत तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, फौरन दरवाजा बंद कर देता है। फिर दोनों मिलकर करीब पड़ी भारी चीजें दरवाजे के आगे लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ मुसलसल दरवाजे से टकरा रहे होते हैं। थम 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 हर ज़र्ब के साथ दरवाजा लरजने लगता है। लड़का और लड़की तेजी से सांस लेते हुए छत के किनारे तक जाते हैं। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाते हैं। दूर दूर तक तबाहशुदा शहर फैला होता है, वीरान सड़कें, खामोश इमारतें और हर तरफ खतरा। मगर उन्हें कहीं भी कोई रेस्क्यू टीम नजर नहीं आती। ना कोई गाड़ी, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई जिंदा इंसान। चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश हो जाते हैं। उनकी सारी उम्मीदें जैसे एक बार फिर टूटने लगती है। लड़की आहिस्ता से आसमान की तरफ देखती है। खा छत के किनारे खड़ा दूर उफुक को घूर रहा होता है। अब वो दोनों एक बार फिर तन्हा थे और नीचे ज़ॉम्बीज़ मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों छत पर खड़े जोर जोर से आवाजें लगा रहे होते हैं। हम यहाँ हैं, हम जिंदा हैं, कोई है तो हमारी मदद करो। मगर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। अचानक नीचे से आने वाले ज़ॉम्बीज़ छत के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। वो पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। धम धम धम। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा टूट जाता है और दर्जनों ज़ॉम्बीज़ छत पर दाखिल हो जाते हैं। लड़का और लड़की फौरन उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ लड़ते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। दोनों पीछे हटते जाते हैं जबकि ज़ॉम्बीज़ मुसलसल उनके करीब आ रहे होते हैं। उनके चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही होती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद अब उनका अंजाम भी बाकी सब लोगों जैसा होने वाला है। मगर ऐन उसी लम्हे आधा है। नीचे से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ठक 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 ठक। दोनों फौरन आसमान की तरफ देखते हैं। एक फौजी हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अगले ही लम्हे हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है। फौजी ज़ॉम्बीज़ को पीछे हटाने लगते हैं और छत को महफूज बना देते हैं। लड़का और लड़की हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आखिरकार मदद पहुंच चुकी होती है। चंद लम्हों बाद फौजी उन्हें हेलीकॉप्टर में सवार कर लेते हैं। जब हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है तो दोनों नीचे देखते हैं। पूरी छत ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई होती है। इधर हेलीकॉप्टर में एक न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शहर के 50,000 से ज्यादा लोग ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि चंद जिंदा बच जाने वालों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया गया है। ये खबर सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं। उन्हें अपने गुजरे हुए तमाम दिन याद आते हैं। भूख, प्यास, तन्हाई, खौफ और वो तमाम लम्हे जब इन्हें लगा था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। मगर एक चीज थी जिसने उन्हें हारने नहीं दिया, उम्मीद और वो अल्फाज, हाँ हमें जिंदा रहना होगा। आखिरकार वो जिंदा थे। लड़का लड़की की तरफ देखता है, लड़की भी उसकी तरफ देखती है। दोनों के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जब दुनिया में उनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उसी के साथ फिल्म की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।